یہ جو قدم قدم ہم چلتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ ہر قدم ہمیں ہمارے اس ٹارگیٹ تک لے کے جا رہا ہوتا ہے جس ٹارگیٹ تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کا دماغ آپ کو ہدایت کرتا ہے اور آپ کے قدم چل پڑتے ہیں۔ یہ قدم جو ہے نا، یہ بھی سمجھیں اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ پیر ہم جسم کا کوئی حصہ بھی دیکھیں تو یقین جانیں کہ ہر حصہ جو ہے نا وہ ایک اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اتنا سا کوئی ذرا سی بھی آپ کو ایسے کوئی آپ کی چھوٹی سی ورید بھی جو ہے نا، وہ اگر اس میں بلڈ نہیں جاتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک بجلی سی جو ہے نا وہ آپ کے اس حصے میں دوڑ گئی ہے۔ او مائی گاڈ، میں نے یہ دیکھا ہے، پرسوں کی بات ہے، ایک دم سے میرے ادھر ہاتھ رائٹ سائڈ کے ہاتھ کے ساتھ بازو جو ہے اس کے اندر کوئی چھوٹی سی ہوگی، بڑی چھوٹی سی، یہ لائنیں نظر آتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی اندر جو چل رہی ہیں، پائپ لائنز، بریک کوئی بریک سی کو پتہ نہیں کیا ہوا اور اس طرح ہوا کہ میں مر جاؤں گی۔ اتنی تکلیف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ذائقہ چکھ رہے ہیں، اس کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اللہ کی مہربانیوں کا احسان جو ہے ہم کبھی اتار نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اس کی تابعداری کریں۔ السلام علیکم جی، میں شاہینہ اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہینہ اسد کا یوٹیوب ولاگ۔ ایک نیا دن، نیا ولاگ لے کے ہم حاضر خدمت ہیں۔ نئی باتیں ہیں، نئی گفتگویں ہیں، یادیں ہیں پرانی، اور بہت چیزیں ہیں جو دماغ کے اس گمت میں نا گھومتی رہتی ہیں اور ایکو پیدا کرتی رہتی ہیں، گوں۔ تو ہم بھی آج ایسے ہی، میں کتابیں پڑھتی ہوں، میری ساتھ والی جو ہے ایک تانیہ، ہمارے ہمسایوں میں جو رہتی ہے بچی، وہ بھی بتا رہی تھی کہ آنٹی میں بھی پڑھتی ہوں اور مجھے کوئی ایسا بتائیں کہ جو میں اچھا سا کوئی ناول ہو یا کوئی اچھی بک ہو جو اردو میں آپ کی بھی رائٹر کی لکھی ہوئی ہو۔ میں اردو تو نہیں پڑھ سکتی، وہ ہندی پڑھتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں وہ کتاب جو ہے نا انگلش میں پڑھ سکتی ہوں، مجھے کوئی بتائیے گا۔ مجھے خیال آیا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ انوائرمنٹ کتنا اثر کرتی ہے۔ ہم بہت چھوٹے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے، میرا خیال ہے 5ویں چھٹی کے درمیان کا آپ سمجھ لیں ٹائم ہوگا، 5ویں میں تھی، اور یہ ہمارے گھر میں اخبار ہمیشہ، جب سے ہم نے آنکھ کھلی ہے نا اخبار ہمارے گھر آتا ہے، اور اخبار ہی وہ پہلا میرا خیال ہے آپ کا توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ آپ اس کو پڑھنا، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی میں جاتے ہیں تو آپ اردو پڑھنے لگ جاتے ہیں یا انگلش پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں اردو اخبارات آتے تھے کیونکہ ہم لوگ تو اردو میڈیم تھے، اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ تو ویسے والد صاحب بھی اردو میڈیم میں پڑھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں انگلش، وہ تو مشن ہائی اسکول سے پڑھے ہوئے تھے رنگ محل میں جو ہے، اب تو اس کی عمارت نظر آتی ہے لیکن اندر بچے تو نہیں پڑھ رہے، اس کو سیف ہی نہیں کیا گیا کہ اس کو سیف کیا رہے۔ یہ ایک ہیریٹیج ہے ہمارا، یہ ایک ہسٹوریکل سکول ہے۔ یہ پتہ نہیں 1800 کتنے میں مشنری جب پنجاب میں آئے، لاہور میں آئے، تو انہوں نے یہاں سکول بنائے تھے۔ ایک یہ والا کیا کہتے ہیں مشن ہائی اسکول، اس کو مشنری کی وجہ سے مشن ہائی اسکول کہنا شروع کر دیا ہوگا۔ اور ایک لڑکیوں کا سکول انہوں نے بنایا شالمی کے فوارہ چوک میں، وہاں لڑکیوں کا سکول تھا، مجھے اب نام، فور مین ہائی اسکول، یہ بھی فور مین ہائی اسکول تھا لڑکوں کا،
लेकिन इसको मिशन स्कूल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मिशनरी इधर पढ़ाते थे और वही सब कुछ। और ये स्कूल इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो इसका अपना बैंड होता था, सुबह सुबह बैंड बजता था, और हम लोग जो हैं इस पे ड्रिल किया करते थे सुबह सुबह रोज़। वो जो एक असेंबली होती है उसमें वो कहते हैं कि पहले तो असेंबली में सुनते थे, ये ईसाइयों का पहले लेक्चर सुनते थे उनकी बाइबल के बारे में, और फिर उसके बाद जो है ना ये बैंड बजता था, बच्चे ही बजा रहे होते तो उन्हीं को ही सिखाया जाता था। और मेरे अब्बा जी कहते थे कि इतना ज़बरदस्त यूनिफॉर्म होता था, और यूनिफॉर्म में हम लाइन कतार में हम ड्रिल कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी अपनी क्लासों में चले जाते थे। जो मलका विक्टोरिया थी या मलका जो भी कोई था उस वक्त, वो कहते हैं हुक्मरान जो भी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसको भी पासनामा पेश करते थे मिशनरी, और हम भी उसकी दुआ के लिए एक दुआ पढ़ी जाती थी। इस तरह मेरे अब्बा जी सुनाया करते थे। वो मिशन स्कूल का जिक्र इसलिए आ गया कि अपने अखबारात की मैं बात कर रही थी कि घर का माहौल जो था वो हमेशा सा एक पढ़ा लिखा माहौल था। वहाँ शुरू से जो है अखबार आते थे, और अखबार के साथ साथ मेरे अम्मी जी जो हैं उनको भी शौक़ था, और वो भी कोई अपना मैगज़ीन मंगवाती थी। फिर जब हम पढ़ने के लायक हुए तो यकीन जाने मेरे भाई चूँकि हमसे बड़े थे, 3 भाई हमसे बड़े थे, 2 भाई हमसे छोटे थे, तो वो तीनों भाई जो थे वो भी बड़े शौकीन थे। ख़ास कर मेरा एक भाई जो कोई लीडर बना, बाद में सियासत में आया, उनका नाम जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी था। स्टूडेंट लीडर थे पहले, और उसके बाद फिर पीपल पार्टी भी ज्वाइन कर ली और उसमें भी चले गए। बहरहाल वो स्टूडेंट लीडर ही थे, जवान ही, तो वो चले गए इस दुनिया से। अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमतों का चादरें बिछा दे। इतना नेक, इतना अच्छा मेरा भाई था जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी। और जो भी उनको जानता है या मेरे तो कोई मेरा व्लॉग सुन रहा हो तो शायद कोई जानने वाला हो, तो मैं जो हूँ अपने उसी बेहतरीन, इंतहाई ज़हीन और फ़तीन और इंटेलिजेंट और खुदा दा सलाहियतों में माला माल भाई की बहन हूँ। एक बहुत ही मतलब मेरा भाई जो था, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, छोटी छोटी किताबें जो होती हैं। लेकिन हमारे घर में मैगज़ीन के साथ साथ बच्चों की भी चीज़ें आती थी, जैसे नो नहाल एक बच्चों का होता था, और एक आता था बच्चों की दुनिया। उफ, बच्चों की दुनिया तो आज तक मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। वहाँ नन्हे के कारनामे एक होते थे, एक नन्हा होता था, उस हर दफ़ा उसका कोई ना कोई कारनामा दिखाया जाता था, क्या गलतियाँ करता था या क्या अच्छाइयाँ करता था। तो उसकी एक पोर्ट्रेट सी बनाई होती थी। उफ, मुझे अभी तक देखे मेरे ज़हन में है। उसने उसके बाल ऐसे ऐसे कटे, निकर पहनी होती थी, और बड़ा डिसेंट सा गोल मटोल सा बच्चा होता था। और वो मैगज़ीन तो हम जो है ना, नो नहाल या ये बच्चों की दुनिया ख़ासकर मुझे पसंद था। तो बच्चों की दुनिया को मैं तो आया है रसाला और पूरा पढ़ पढ़ के ख़त्म कर देती। और फिर जूँ जूँ हम बड़े हुए थोड़े से, फिर उसके बाद किताबें, हमारे भाई इतनी किताबें लाते थे। फिर हमारे घर डाइजेस्ट भी आना कोई शुरू हो गया। वो डाइजेस्ट, उस वक्त डाइजेस्टों का भी एक दौर था, पता नहीं कौन कौन से डाइजेस्ट बिकते थे, जिसमें एक डाइजेस्ट सब रंग डाइजेस्ट था। मुझे याद है कि वो छठी क्लास थी कि पाँचवीं थी, हम सारे बहन भाई ना उसको पकड़ने, उसको खींचने, और उसके लिए जो है ना हम बेताब होते थे कि कब ये जो पढ़ रहा है ये छोड़े, और फिर हम, क्योंकि उसमें कोई किस्तवार स्टोरियाँ चलती थी, और आज तक मेरे ज़हन से वो स्टोरियाँ नहीं गई। एक अकाबला थी, बड़ी वो भी ज़बरदस्त स्टोरी थी। वो तो बिल्कुल आज मैं सोचती हूँ कि हमारी फितरत के मुताबिक थी। ये जो अल्लाह पाक ने सारा निज़ाम बनाया ना, इस निज़ाम के मुताबिक थी। एक हस्ती थी जिसका नाम अकाबला था, और वो काबला को उन्होंने दिखाया है कि क्या क्या उसका होता था, क्या क्या कबीले, कोई अफ्रीका का कबीला था, और वहाँ की वो देवी थी, और सारे जो है ना
उस को मानते थे, पूजते थे, लेकिन वो कभी किसी को नज़र नहीं आती थी। और इस तरह का ना एक वो भी तक मेरे दिमाग में है, मुझे काश वो कहीं से मुझे फिर मिल जाए और मैं पढूं, क्योंकि सारे मैगज़ीन पता नहीं किधर चले गए, ज़माने के खुर्द बुर्द में कहीं इधर उधर हो गए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये बचपन के दौर थे, फिर घर भी चेंज कर लिए इस तरह ना, पता नहीं किधर चले गए। फिर एक और उसमें थी अम्बर बेल, एक अमर बेल थी, अमर बेल, ओ माय गॉड, वो मुझे थोड़ी थोड़ी सी कुछ याद है, ज़रा सी। एक और थी उसमें, ये किश्तवाड़ चल रही थी, बाजीगर। और ये स्टोरियाँ तो जो थी ये भी चल रही थी, और मैगज़ीन ने, डाइजेस्ट, सब रंग डाइजेस्ट ने आना ख़त्म कर दिया। और पहले पहले वो 2 माह बाद आने लग गया, फिर वो 6 माह बाद आने लग गया, फिर वो साल बाद आने लग गया, और फिर 2 साल 3 साल बाद भी आने लग गया। और लोग इस तरह झपटते थे इतना, मतलब तब तक तो मेरी शादी भी हो गई थी जब वो 2 साल बाद या साल बाद आ रहा था, मेरी शादी हो गई थी। मेरा भाई सोहेल जो है, अल्लाह ताला उस पर इतनी रहमतें करें, इतनी रहमतें करें कि जिसमें अल्लाह का शुमार ना हो। तो सोहेल बाबू जो मेरा भाई था, वो लाता था, ये काम अब उसका था, वो लाता था। और फिर हम भी इतने बड़े अब हो गए थे, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर इतनी दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ते भी थे तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता। तो जो उस दौर की बातें मुझे याद हैं कि जब स्कूल में हम पढ़ते थे और किस तरह हम पागलों की तरह उस मैगज़ीन का फ़ारग होने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि मेरे अब्बा जी पढ़ रहे होते थे, बड़े भाई, और फिर सुहेल बाबू, फिर मैं और मेरी बहन। हम, सलीम ज़रा छोटा था, वो भी पढ़ता होगा, लेकिन वो छोटा था जब ये शुरू हुआ था, हम भी छोटे थे, वो तो बिल्कुल ही पिदनू सा था। तो ये हम लोगों की फैमिली में लिखाई पढ़ाई और ये सोच विचार और ये विजडम और ये दिमाग में ख्यालात का आना और उनके ऊपर सोचना, ये सारा उन किताबों की वजह से। सब रंग में यही सिलसिले नहीं होते थे, वहाँ औलिया अल्लाह का भी एक सिलसिला चलता था। यहाँ मैं कहना ज़रूरी समझूंगी कि वो औलिया अल्लाह का जो सिलसिला चलता था, मैं वो बड़े शौक़ से पढ़ती थी, और मुझे अभी तक उसके असरात हैं मेरे अंदर। मैं समझती हूँ वो जो औलिया अल्लाह थे, किस तरह उनकी कोई ना कोई, मतलब जैसे कुतुबुद्दीन काकी, इस तरह ये बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं जो, और भी इनकी कहानियाँ थी, इनका बायोग्राफी थी, इनकी ज़िंदगी की कहानी बताई जाती थी, और वो बहुत आपके करैक्टर पे असर डालती थी, खासकर हम जो बच्चे इतने छोटे थे। इसी वजह से मेरे दिमाग में वो चीज़ें छाई हुई हैं। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो छोटे बचपन में ही बच्चों को कहीं, मतलब उस माहौल में, उस चीज़ में डाल दें, तो यकीन जाने ये जो बचपन की हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, ये तो मेरे ज़हन से तो आज तक नहीं जाती। और मैं आपसे इल्तमास करती हूँ, ख़ास ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना, मेरी जो बेटी है तानिया साथ वाली, उनके बारे उन्होंने जो कहा, और उन्होंने बड़ी तफसील से तरीका बताया कि लाइब्रेरी में इस तरह ये है, क्या है, ई बुक है, और कई चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन पे पढ़ सकते हैं, जब लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहते। अगर लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में जाके भी आप वहाँ क्या कहती हैं, कंप्यूटर पे जाके पढ़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हो सकता है कोई तरीका हो जो आपको बहुत समझा दें। तो आज मैं यही फिर ज़िया साहब को या कामरान साहब हैं या और हमारे जो मुझे पता नहीं है और देखते हैं मेरा व्लॉग और समझते हैं इन चीज़ों को, तो मैं उनसे कहूँगी कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि सब रंग के ये सिलसिले जो हैं ये हम कैसे दोबारा पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपने बच्चों को लिखने पढ़ने में ज़रूर डालें। नतीजा इसका सारी गुफ्तगू का ये है कि अपने बच्चों को, छोटे छोटों को अच्छी किताबें दें, वो पढ़ें, रीडिंग करें, रीडिंग करने का शौक़ डालें, क्योंकि बच्चों को ये जो निज़ाम इन्होंने बड़ों ने बना लिया ना पूरी दुनिया को होल्ड करने के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों को अपने होल्ड में लाने के लिए, फितरत से दूर करने के लिए, उस निज़ाम से दूर करें। ज़रा ये आप अपनी कोशिश खुद करें,
आप फिर ही बच सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। अगर बच्चों को आप ये पकड़ा देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन, तो वो तो उसमें घूम रहेंगे, और कंप्यूटर और ये वो। बच्चों का जब फारिग टाइम हो, कोशिश करें कि उनको बाहर ले जाएं, उनको अपने बैक यार्ड पे बिठाएं, वो खेलें उधर। आप बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बैठें, बहन भाइयों माँ बाप के साथ बैठ के आप गपशप उनसे लगाएं। बच्चे जो हैं वहाँ खेल लें, उनको बुक्स दें, वो बुक पढ़ें। ये इस तरह की जो उनके जो सिलेबस है उससे हट के बुक्स। आप अपने बच्चों को उस माहौल में जाएं जो फितरत का माहौल है, जो कुदरत का माहौल है, जहाँ हम ज़्यादा पनप सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा हमारा बिल्डअप हो सकता है मेंटली भी और हमारा सारा जिस्मानी भी। तो फिर बात करते हैं, काफ़ी लंबी बात हो गई मेरी। आज बड़ा मेरा ज़ाती दिल कर रहा है कि जाके ना कॉस्को से फ्राइज़ खाऊं और पेप्सी पीऊं, बड़ा मूड बना है। तो मैंने इनको बच्चों को कहा चलो निकलो, ये हालांकि जिम जुम करके आए हैं, थके हुए थे, लेकिन मेरी खातिर निकल रहे हैं। तो इनको लेके जा रहे हैं जी, फ्राइज़ श्राइज़ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे छुट्टी है। मेरी तो नहीं है, इन लोगों की छुट्टी है, तो मैं थोड़ा रेस्ट ज़्यादा कर लूँगा और फिर 10 बजे मेरी लेसन्स हैं। यार एक तो ये बड़ा मसला है कि इनको ना खींचना पड़ता है, फटाफट आओ बाहर आओ बाहर आओ, ये बड़ा मसला। मैं बाहर खड़ा वेट कर रहा हूँ और इनका कोई पता नहीं है। ये जाती है यार, नहीं वो मैं तो निकल रही हूँ, पानी ना दे क्यों। देखे ना कोई बहाना ज़रूर है साथ। ये ऊपर चला गया मोजे पहन, तो निकल रहा हूँ, देखा सॉक्स पकड़ लो। देखा, सब अपना कोई ना कोई कहानी सुनाएंगे। फिजा जान आप अपनी कहानी सुना दें। आप तो वैसे बाहर थी, मैंने देखा है आपको। नहीं मैं वो इधर उधर ही घूम रही हूँ। कौन सी गाड़ी ले जानी है? रेड। आप उनकी गाड़ी के पीछे पड़ गए हैं। मैंने आज जाना था, इसका वासिल को मैंने कहा था कि मैं उसके साथ लग के ना जो चेरीज रह गई हैं ऊपर वाले पोर्शन की ना, उसको मैंने कहा मैं और तुम दोनों ऊपर चढ़ के इसको निकालेंगे। वो अब मुझे इधर आना पड़ गया है। वो बेचारा उनकी जो है दादू आई थी, पूछ रही थी कि करना है कि नहीं, तो शाहीना ने कहा नहीं हम तो जा रहे हैं। सो एनीवेज बेचारे के साथ मेरा बड़ा दिल था कि मैं जाऊंगा और हम दोनों ऊपर छत पे चढ़ के ना उतारेंगे चेरीज, लेकिन नहीं हो सका। वो अब उसके कज़न्स आ गए, वो देखें वो कज़न्स आ गए हैं, ये लोग अब जाएंगे, ये ऊपर चढ़ के चेरी उतारेंगे। चले कोई नहीं, बड़ा मौका होता है। ये देखें इधर बाजी भी आ गई हैं, इनको बता रहे हैं कि सॉरी आज नहीं हो सकेगा। सो लेट्स सी, अगर आज ये भी नहीं करते हम भी नहीं करते तो कल रख लेंगे, कल उतार लेंगे। आओ जी, कोई नहीं आए। अच्छा उनसे माजरत कर लेनी थी कि मैं नहीं आ सकूंगा। माजरत की मैं कर ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰੌਣਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। नहीं जी ज़रा निकले हम, असद साहब जो है रिलैक्स होकर बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा, मुझे उनसे ज़्यादा रिलैक्स था क्योंकि आज ज़रा लेग डे था ना। हाँ यस, मुझे फिजा सारे इलेक्टेड थे सारे। तो इलेक्टेड क्या ये मुझे ने कोई लफ्ज़ बोला है, मैंने भी कह दिया इलेक्टेड थे सारे, इलेक्टेड थे। ये पता क्या हो रहा है? ये आपको जबड़ा चाहिए आर्टिफिशियल, आपके दांत काम नहीं कर रहे। ये बड़ी मजाकिया बातें करने लग गए क्योंकि ये जुबान लड़क रही है। मैं बताता हूँ, इधर वो देखे ट्रेन जा रही है, देखो उधर कर रही है,
मेरी तरफ क्यों नहीं कर रही? तो जनाब ये निकले हैं, हम थोड़ा सा आपको भी नज़ारा करा दें। ये देखें, ये देखें, मंजर निगारी कुछ और ही होती है वैसे बाहर के मुल्कों की। अपने मुल्कों की भी मंजर निगारी है, लेकिन बाहर के मुल्कों की भी है, अपने अपने तर्ज की है ना, अपने अपने तर्ज की है। बिल्कुल इनका ज़रा डिफरेंट है, खुला डुला ज़्यादा है, हमारा भी है, लेकिन ये इनके दरख्त, इनकी कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल हमसे मुख्तलिफ है, तो इसलिए अजीब लगता है। एक मतलब नज़म नज़र आता है हर चीज़ में ना, लेकिन वक्त के साथ साथ इधर बगाड़ शुरू हो रहा है, वो भी हमें नज़र अब आने लग गया बड़ी चीज़ों में, क्योंकि इधर भी वो सारी वही कौमें आ गई हैं जो अपने मुल्कों को बगाड़ के बर्बाद करके इधर को निकल आई। वही अब कौमें इधर भी हैं, अब देखे क्या होना है, अल्लाह ही बेहतर करे। मिक्स हो रहा है, खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी बन रही है। क्यों फिजा जान, हाँ जी हाँ जी। चलें अब उधर चल के देखते हैं क्या उधर हमारा इंतजार कर रहे हैं। किधर किधर जाना है? मेरा हमें ज़रा दिल किया है उसका, ये फ्राइज का, कॉस्को की फ्राइज कोलेस्ट्रॉल और साथ बोतल। कोलेस्ट्रॉल मुझे जानने कह दिया कोलेस्ट्रॉल। नहीं, कल जिम शुरू। अच्छा जमा करा है पैसे? जी हाँ, कल से जिम शुरू। मुझे भी साथ लेके जाना है। आपका तो फॉक्सी हो गया ना, हैं? आपका तो है ऑलरेडी हाँ, मेंबरशिप। 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक। ठीक है, चलें आप सुबह तैयारी पकड़े, 4 बजे सुबह जाना है। इंशाल्लाह 4 बजे खुलेगा आपके लिए? नहीं, तोड़ के अंदर जाऊंगा, अच्छा दरवाजे तोड़ के अंदर जाऊंगा। देखो, मैं रह नहीं सकता इसके बगैर, मुझे करना है, कुछ ना कुछ करना है। करने हैं। इधर अच्छा जाओ। अच्छा। चलें फिर दिखाते हैं आपको, इनका दिल बहुत फ्राइज। कर रहा है फ्राइज पे। ठीक है, हम भी जब गए थे तो हम ये बहस हो गई है कि जी जो है ना, लेकिन वो फीफा कप जाके स्टेडियम में देखना चाहिए। वो $2500 की टिकट है, तो आ नहीं रहा। $900 कम से कम, $1000 मुझे शाहरुख ये तैयार है जाने के मैंने लिए। कहा कि जाना चाहिए, एक इंजॉय करता है बंदा, क्राउड का इंजॉय। तो आप फिर कड़े बेच दें, आप कड़े बेचें और जाएं फिर। होता है कि आप चले गए हो, सीरियस डिस्कशन हो रही है। फीफा में बैठे हो आप। बड़ा मजा आता है जो आई सीरियस हो गई ये यार चले गए। यू कैन, जैसे मैं अब कह सकती हूँ मैं तो जीत के कॉन्सर्ट पे गई हूँ। वो कंसर्ट आपका जो था उस पे आपने कितना $2000 लगाया है? पहले $500, 5000। 5000 गिट है। देखा इधर कितना है, वो खड़े हैं, वो खड़े हैं फिजा और मुझे। वो देख नहीं जी, जिसके लिए आए थे वो दिखाऊं आपको, क्या किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है हमें, मुझे खास तौर पर ये और ये आज फ्राइडे नाइट है ना, बहुत रश है ना। काफ़ी रश है। ये उन्होंने कैसे स्कैम मारा है? क्या सॉल्ट को ब्लैक लिखा हुआ है, वही मैंने वरना कहा, उल्टा होता है। कभी भी नहीं होगा। पेपर ब्लैक होती है, सॉल्ट रेड होता है। हाँ, तभी तो मैं लाई, मैंने कहा ये क्या है? ये नए आए हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे। पहले वाइट थे, हाँ, पहले प्लेन वाइट होता था। ये मुझे कह रहे हैं ना स्कैम मारा। इसकी ज़रूरत नहीं है यार ढक्कन की, पता नहीं क्यों ढक्कन है। क्योंकि अपने अपने कॉर्नर। एक्स्ट्रा स्ट्रॉज, एक्स्ट्रा टिश्यूज, एक्स्ट्रा फलाना फलाना, प्लीज आस्क व्हेन इट्स नीडेड। वरना हर जगह वैसे, जब टिश्यू तो वैसे पहले वैसे ही पड़े होते थे। रोना, ये मुल्क भी रोना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कहा वेस्टेज होती है। नहीं जी, पूरा हो गया, टन हो गया, काम ख़त्म।
کھا پی کے موجیں کر کے چکر سیر سور کر کے نکل آیا, نکل آئے ہیں گھروں کو پہنچ گئے اور اپنے. نیند اب اتنی شدید آ رہی ہے مجھے, تو میرا دل کر رہا ہے کہ بس نماز عشاء کی رہ گئی ہے وہ پڑھ لیں اور پھر بھی ہوش ہو جائے بس. موئس کا تو خیر کل چھٹی ہے, یہ رات جاگے گا. فضا بھی جاگیں گی لگتا ہے. فضا آپ جاگتی ہیں ویسے ویکینڈ پہ نا, لیٹ آورس ہے نا؟ یا ادھر نیند بھی نہیں آتی بیٹا؟ نہیں ویسے پتہ کیا, یہ اچھی بات ہے کہ معدے کو, جسم کو, دماغ کو نا شوقس دینے چاہیے. شوق کیا ہوتا ہے کہ آپ 9 بجے سو جاتے ہیں, ایک دن مہینے کے 2 دن ایسے رکھیں کہ 3 بجے سوئیں. باڈی کو, دماغ کو اس طرح یہ ہلکے ہلکے شوقس دیں. اور جو یہ کولیسٹرول کا چکر ہے اور بڑے میٹھے نہ کھائیں, فلانا نہ کریں, نہ کھائیں, لیکن مہینے میں 1 بار میٹھا کھائیں یا 2 بار بد پرہیزی فل کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, معدہ بھی جو ہے نا آپ کا اس کے مطابق قبول کرتا ہے اور سخت رہتا ہے. اور آپ لگتا ہے کوئی نشے میں ہے, مجھے لگ رہا ہے. نیند آ رہی کیا پیا آپ نے؟ مہندی آپ سے اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ ایک نیا دن نیا ولاگ لے کے اللہ نے چاہا تو کل پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ میں کیا لایا ہوں, تو اللہ حافظ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ پان لے کے آئے, لاچی سپاری, سونف, کھا خوشبو, کے کالا, پان گلوری والا. لال کتھا, پیلا تمباکو, زہر, سب کچھ اس میں ڈالا. اللہ معاف کرے مجھے. ایسا نیلا توتھا, نیلا توتھا پان. اتر بھائی زیادہ ہی اوور ہو گیا, نیلا طوطا بھی آ گیا. چلے ٹھیک ہے, یہ ٹاٹا نہیں کر رہی, میری طرف سے ٹاٹا, ان کی طرف سے بھی ٹاٹا, سوئے ہوئے ٹاٹے. اوکے ٹاٹا. فضا کی طرف فضا ہے, فضا غائب. چلیں فضا کی طرف سے میری طرف ٹاٹا, میں فضا کی طرف سے کر رہا ہوں آپ کو. اللہ حافظ.